marketing is concerned, it has always been a constant for us right here in Kashmir. So in order to answer this question, how to market our produce, we have here with us Saeed Faisal Andrabi. He works in Amazon North America and is a technical associate in Sellers Vertical. He has helped many business units to start e-commerce and flourish in the field. Let us learn from him how e-commerce and marketing can help a business to flourish and how we can boost the sales of our business using this AI. He has done his graduation from Jamia Millia Islamia New Delhi, and there he won the Enactus World Cup, which was an international competition. He is also involved in linking small as well as large business units with national and international markets. Let's invite him to just present his presentation. Thank you so much, ma'am. Hello everyone, a very good afternoon to all of you. My name is Faisal. As ma'am said, I work in Amazon North America. I am from the seller vertical, and today I'll help all of you to know more about how we can navigate online marketing and boost the sales of our business. So basically, I'll show you the contents of my presentation. We'll first have an introduction to e-commerce and online marketing. Then we'll see how it helps us in increasing the sales of a business, the strategies that should be implemented, the types of platforms that are available. And then we have a new thing, auto intelligence. You must have heard of it. How it can help us in building our own business on online platforms. And then we have some common problems and difficulties that we might face while setting up this online business. So, starting with e-commerce, this letter E, when it is, when it is used with any other word, for example, we say email, that was first introduced with this letter E. This means electronic mail, that is an email that is sent through internet. Anything else combined with this letter E makes it electronic, that is via the internet. And today we have e-commerce, that is using the internet to trade basically. Sell your products and services and reaching a wider market. We'll talk about e-commerce and marketing using the internet. That means trade of goods or services using whatever resources we have available online. So, talking about e-commerce, what basically e-commerce is? It means buying and selling of goods and services online using the internet. And it includes online shopping, electronic payments, auctions, and many other things. That is, we also have banking as well. So, talking about the types of e-commerce, there are 4 basic types that we can talk about here. The first one is B2C. That means a business is selling to a customer. जो आजकल हर जगह होता है, if you go to a shop, you take from a business and you use the product, and then it is retail basically, B2C. Then talking about the second one, B2B, it means business to business. That is when a business sells to another business, that is wholesale basically. And then it is C2C, that means consumer or customer to another customer. If you sell your second-hand product, you can sell it online, you can go to a shop, you can sell it to another customer, another user who may use your product. That means C2C. आजकल ये चीज़ ऑनलाइन भी होती है. You have websites like OLX and all, जिस पे आप अपनी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. या फिर गाड़ियों के लिए we have different websites that may be used. उसके बाद there is C2B, that is customer to business, which means you are selling your used product to another business who will sell it to another customer and make it B2C again, that is retail. उसके बाद we have the last model, that is B2G, that means a business selling to the government.
तो ये सब टाइप्स हैं हमारी ई कॉमर्स की। उसके बाद वी हैव मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing is a very important part of this e-commerce, and it single-handedly determines एक online business कितना आगे बढ़ेगा और कितना पीछे रहेगा। If you as an entrepreneur are able to use marketing, तो आपका business flourish होगा। You just need to know the tools, you just need to know how to use those tools. उसके बाद in marketing, what basically marketing is now? Marketing means to advertise, but here marketing means to advertise using channels on the internet. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है leveraging internet channels for brand promotion. उसका मतलब advertisement ही है, but using the internet. अब आप इंटरनेट पे कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करोगे, कैसे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करोगे, उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अब मार्केटिंग का मतलब ये भी है कि आप जैसे मार्केट में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एज अ कस्टमर इफ यू गो इनटू अ मार्केट एंड यू सी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल फ़ोन लेना है, तो अगर आप एक शॉप पे जाते हैं, आप एप्पल का फ़ोन देखते हैं, आप आईफोन या सैमसंग का फ़ोन या कोई भी फ़ोन देखते हैं, तो जिस ब्रांड का आपके पास एक मार्केटिंग के थ्रू एक गुडविल डेवलप हुआ होगा, आप उस ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, even if that brand does not give you as much investment return। अगर आपको उस चीज़ का उतना फायदा नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है मार्केटिंग की हेल्प से वो ब्रांड का चीज़ आप खरीदते हो, even if that is not as much useful to you as the other products। Now we have some strategies जो कि हम यूज़ कर सकते हैं for marketing। The first one SEO, search engine optimization। That means आप एक सर्च इंजन को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हो कि एक आपका जो एक टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर्स होते हैं, उन लोगों के वेब पेज पे आपका ही प्रोडक्ट पहले आएगा। दैट इज बेसिकली पेड। इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एसईओ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज इट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। उसके बाद वी हैव कंटेंट मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग मीन्स टू make engaging content and post it on social media and all other platforms, जिससे कि आपका जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम a group of audience या आपका जो टारगेट ऑडियंस है उनके पास आए, उनके पास आपका नाम जाए, they know about all the products that you sell। that is content marketing। then we have social media marketing, which is the most powerful marketing tool। why? because each one of us sitting in this room, हम सब phones पे social media use करते हैं। It's not कि social media कोई छोटी चीज़ है, social media हर एक की जेब में है, और अगर आपको लोगों के जेब तक पहुंचना है, अगर आपको लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, तो social media is very important। social media marketing, उसकी हमारे पास इतनी सारी examples, अगर हम कश्मीर की ही बात करें, we must know वो पारसा फूड्स, आप सबको पता होगा, it is everywhere, it is now across India। उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग का इतना यूज़ किया कि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड नाउ ही इज सेलिंग अक्रॉस द कंट्री। कश्मीर का लार्जेस्ट फूड चेन उसने खोला विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। you do not need to you do not need to invest one single rupee on this, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। यू जस्ट नीड टू रीच द ऑडियंस, यू जस्ट नीड टू रीच द जो आपके टारगेट ऑडियंस है उन तक आपको रीच करना है, उनके साथ आपको अपना कंटेंट शेयर करना है, तब जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है दैट विल बी। उसके बाद हियर वी हैव ईमेल मार्केटिंग। नाउ ईमेल मार्केटिंग मींस सेंडिंग ईमेल्स टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। ये ऐसे वर्क करता है कि एन ईमेल इज फॉर्म्ड एंड यू आस्क अ डिफरेंट कंपनी ईमेल मार्केटिंग की जो होगी, उसको ये बोलते हो आप कि मेरे टारगेट ऑडियंस के ईमेल अपने पास लो और उनको मेरा एडवर्टाइज भेजो सो दैट दे कैन रीड इट। आप अपने ईमेल्स अगर चेक करेंगे आपके पास भी काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स आ गए होंगे जो कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग से अ मोबाइल फोन,
तो आप वो मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट अमेज़ॉन पे जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका ईमेल मांगता है वो, इसी वजह से वो आपका ईमेल मांगता है, सो दैट दे कैन स्टोर दिस ईमेल एंड लेटर ऑन सेंड एन एडवर्टीजमेंट टू यू वाया द ईमेल. आफ्टर दैट वी हैव पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग. दैट मीन्स आपको हर एक क्लिक का पैसा पे करना होगा. अगर आपने एक वेबसाइट को अपने पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का पैसा दिया है तो आप वो अपनी वेबसाइट पे आपका एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हैं और उसके बाद दे जस्ट you need to pay them for every click that a customer does to your advertise. अगर ऐसे let's take an example again. Amazon का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्राउजिंग अ न्यूज़ पेज, फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्राउजिंग द हिंदू, एक न्यूज़ पेपर है, उस पर काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री. तो उस ब्राउजिंग हिस्ट्री को लेके जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो अमेज़ॉन का एक ऐड पोस्ट करता है उसी मोबाइल फ़ोन को लेके जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा है, या उससे रिलेटेड कोई मोबाइल फ़ोन जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा है अमेज़ॉन पर. दैट इज पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग. उसके बाद वी हैव सम की कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. अगर आपको एक जो आपका ईमेल, जो आपका बिजनेस है, अगर आपको वो ऑनलाइन लेना है तो देयर आर सम बेसिक अ फ्यू एलिमेंट्स, अ फ्यू कंपोनेंट्स जो कि ज़रूरी हैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए. द फर्स्ट वन इज अ वेबसाइट और एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, अगर वो उतना लार्ज स्केल नहीं है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑलरेडी मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स so that you can sell your products. If you create a website on a small scale business, तो वेबसाइट हैंडलिंग के चार्जेस अलग होते हैं, वो सब देने के I mean it is advisable to go for online platforms in that case. हाँ, अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है तो you can go for a website. You can there are many website hosts जो कि आपके लिए आपकी पूरी वेबसाइट बना देंगे. You just need to provide them with some details, आपके बिजनेस का नाम and logos and all. तो वो सब है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ऐसा है कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू डू इट फॉर यू. हाँ, यू कैन हायर अ सोशल मीडिया मैनेजर बट इट इज नॉट एज मच एक्सपेंसिव एज अ वेबसाइट, एज अ सेपरेट वेबसाइट. उसके बाद वी हैव अ सिक्योर पेमेंट गेटवे. व्हाट इज अ पेमेंट गेटवे? व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन वेबसाइट, फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो अगर आप पहले ही पे करना चाहते हैं, अगर आप पे ऑन डिलीवरी नहीं रखते हैं, तो ये जो पेमेंट गेटवे है इसके थ्रू आप उस वेबसाइट को वो पैसा पे करते हैं, जिसमें कि वो सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, डिलीवरी चार्ज, टैक्स और जो आप आइटम खरीद रहे हैं उसका प्राइस, वो सब उसमें इंक्लूडेड होता है. तो दैट इज पेमेंट गेटवे. अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको सिक्योर क्यों चूज करनी है? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, दैट इज ऑनलाइन. एंड व्हेन यू गो ऑनलाइन यू आर प्रोन टू हैकिंग, यू आर प्रोन टू ऑल दोज हैकर्स जो आपके बैंक अकाउंट में जाके आपका सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. एंड टू अवॉइड दैट we need a secure payment gateway. वो सब options भी online सब available होते हैं when you start a business. For example, take UPI जो payment system है, अगर हम वो use करते हैं that is a very secure online payment gateway. उसके बाद we can see online shopping carts जिसमें कि एक customer अपना जो उसका सब products है, the one that he wants to buy, वो सब एक कार्ट में separate करके रखता है so that he can buy them together. उसके बाद one very important thing, that is product catalogs. Now what is a product catalog? A product catalog is basically the description of all the products that you want to sell online. और ये जो product catalog है ये आप इतना attractive, इतना interactive बना सकते हैं so that it reaches maximum audience. जितना attractive आपका content होगा, जितना ज़्यादा अच्छा आपका content होगा, उतने लोग इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उतने सारे लोग इसके साथ जो है इसको यूज़ करके आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे और ज़्यादा मार्केट बढ़ेगी आपकी इसकी वजह से. तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग में आप बेसिकली रखेंगे क्या? यू विल इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू सेल. यू विल इंक्लूड पिक्चर्स बेसिकली, जिसमें आप एक डिस्क्रिप्शन एक पर्सपेक्टिव मिलेगा आपके कस्टमर को वो खरीद क्या रहे हैं. And उसके अलावा you can put the prices, you can put all the details of your product in this product catalog. Then another very important thing is robust logistics for order fulfillment and delivery. इसका मतलब क्या है
जो लॉजिस्टिक्स बेसिकली मीन्स मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप डिलीवरी की बात करें तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदी और आपको टाइम पर डिलीवरी नहीं मिली, तो नेचुरली इंसान दूसरी टाइम वही वेबसाइट से वो चीज़ खरीदना मुनासिब नहीं समझता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू मेक श्योर दैट अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर हु हैज परचेज्ड इट ऑन टाइम एंड सेफली। उस चीज़ के लिए अगेन गोइंग टू द पर्सपेक्टिव, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप डिलीवरी पार्टनर्स जो चूज करेंगे दे शुड ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट विद फुल सिक्योरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट उनको दिया और वो जो कस्टमर के पास पहुंचा तो वो डैमेज है या फिर ब्रोकन है, वैसा नहीं होना चाहिए। दैट विल बी दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर बिजनेस। उससे आपका गुडविल डाउन होगा मार्केट में और आपकी कस्टमर बेस कम होगी और नेचुरली दूसरी बार वो इंसान आपसे नहीं खरीदेगा कुछ जिसको एक डैमेज प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट मिला बट which was late. उसके बाद in the next slide we have how does this e-commerce, अब अपना जो मेन टॉपिक है, how does it help in increasing the sale. Basically यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे the advantages that you have as as an e-commerce, as an online business, the advantages that you have over a normal business. अगर आप शॉप पे जाते हैं, अगर आप एक शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखें जो एक ऑफलाइन अपनी दुकान चला रहे हैं, उनका उतना वाइड मार्केट रीच नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ शॉप इन लाल चौक, तो जितने लोग लाल चौक में घूम रहे हैं वो मेरे ऑडियंस हैं, वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं मुझसे। बट इफ़ आई हैव द सेम शॉप ऑनलाइन, मेरा जो टारगेट ऑडियंस या जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर बेस होगा दैट विल बी वर्ल्ड वाइड, अ ग्लोबल कस्टमर बेस यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। ये जो है ज्योग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक करता है। दैट मीन्स आपके पास ऐसा कोई इफ़ यू गो ऑन टू द इंटरनेट देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर। अ पर्सन सिटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैन look at all the products that you upload on your website that you want to sell to them. वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, you need to I need to buy it from you, I want this product and all. तो उसका मतलब हमारी मार्केट रीच जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है। उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग दिस सेल इज द 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन रखा है, मतलब इफ़ यू आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, उसका मतलब है इट इज़ अवेलेबल 24/7। मैं अभी अपना फ़ोन खोल के कोई प्रोडक्ट देखूँ, मैं आज से 10 घंटे अभी से 10 घंटे बाद कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खोल के देखूँ, मुझे वो प्रोडक्ट वैसे का वैसा ही मिलेगा, मुझे उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज़ अवेलेबल 24/7। If you open Amazon right now or if you open after 24 hours, it will be the same thing. It is available around the clock. That is one very important thing. यहाँ पे क्या होता है, ठंड की वजह से भी जल्दी दुकानें बंद होती हैं। 8, 9, 10 बजे के बाद you won't see any shop open anywhere. और उसके बाद we have personalized marketing and customer targeting. इससे पहले भी मैंने customer targeting की बात की। अब customer targeting होता ये है कि आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही खरीद सकती है, एक पर्टिकुलर कस्टमर टारगेट आपका जो है वही खरीद सकता है। उसको हम कैसे टारगेट करें? वो एक जो ग्रुप है, एक पर्टिकुलर छोटा सा ग्रुप होता है, अगर उसको हम टारगेट कैसे करें? वो हम कस्टमर का डेटा जो होता है बेसिकली, जो मैंने आपको कहा, आप एक वेबसाइट विजिट करते हैं, आप उसमें कोई मोबाइल फ़ोन देखते हैं, वो आपका डेटा स्टोर होता है और उससे एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है जिसके पास वो एडवर्टीजमेंट जाता है। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए, आप एक दुकान पे या किसी नॉर्मल जगह पे ऑफलाइन अगर कोई मार्केट है, उसमें आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि आप एक मतलब कर सकते हैं बट नॉट ऑन सच अ लार्ज स्केल। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बेसिकली इट मीन्स अगर आपने दुकान पे किसी को सेल्समैन की तरह रखा है, आप उसको पैसा देंगे, आप उसको सैलरी देंगे, दैट इज द ऑपरेशनल कॉस्ट दैट इनकर्स व्हेन यू हैव टू पे हिम और हर द सैलरी from your business. यहाँ पे e-commerce में you do not have any such operational cost because everything is online. You just need to click a picture, you need to upload it, you need to write a description. वो सब करने के लिए you do not need anyone else. और even if you need, the operational cost will not be as much as it is in in an offline business. उसके बाद
स्ट्रीमलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट इज एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वो एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को, एक कन्वीनियंट एक्सपीरियंस देता है। और जब आप एक ऑनलाइन वेबसाइट खोलते हैं, जब आप कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि एक की जगह आप दो चीज़ ले लेते हैं जस्ट बिकॉज जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा है। यू जस्ट उससे इंक्रीज होती हैं सेल्स, और भी इसमें जो है आप शेयर कर सकते हैं ये चीज़, रेफरेंस दे सकते हैं लोगों को। आप इसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने व्हाट्सएप का लिंक उठा, व्हाट्सएप पे लिंक पेस्ट करके किसी फ्रेंड को भेज दिया, किसी ग्रुप में भेज दिया, तो रेफरेंस भी काफ़ी सारे होते हैं। उसके अलावा इसमें एक पॉइंट जो है मेंशन नहीं है, दैट इज रिव्यूज़। आप ऑनलाइन उस प्रोडक्ट के ऑनेस्ट रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि जिन लोगों ने वो पहले से वो प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, उनके लिए वो like how much did they like it, how much did they like that product, so that if it has a good review you can go ahead and you can buy the same product as well. Now next we have the strategies that should be implemented to make an online business a success. मतलब कि जो strategies हैं, बहुत सारी ऐसी strategies होती हैं जो कि आप implement करना चाहिए so that your online business becomes a huge success. Strategic marketing and advertising, अगर आपको याद होगा अभी मैंने एग्जाम्पल दी पारसा फूड्स की, उसने यही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, दैट मीन्स सोशल मीडिया बेसिकली, जो उसने यूज किया टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट्स वेरी इफेक्टिवली, और इतना ज़्यादा इफेक्टिव, उसका इतना ज़्यादा जोर रहा इस चीज़ पे, दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज द मेन रीजन व्हाई ही फ्लरिश्ड, व्हाई हिज बिजनेस ग्रू सो एक्सटेंसिवली और इतना ज़्यादा क्विकली। उसके बाद अनदर स्ट्रेटजी, अनदर बेसिकली जो रूल है जो आपको रखना चाहिए कि आपका जो कस्टमर सर्विस है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। मतलब अगर आपके कस्टमर की कोई क्वेरीज हैं, इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट योर प्रोडक्ट, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, यू शुड बी एबल टू address all the issues that they are facing, address all the concerns that they are facing. तो कस्टमर सर्विस जो है वो एक बहुत एसेंशियल चीज़ होती है टू गेन द basically the trust of your customer. Then we have another point, product quality. आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है that should be very high. उसका जो प्राइसिंग है that should be transparent in comparison to your competitors. क्योंकि आप अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है सेल करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मोनोपोली होगी और सिर्फ आप ही वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। आप जैसे और हज़ारों लोग होंगे, तो हाउ यू नीड टू स्टैंड आउट इज अपना जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रखना है, एंड जो प्राइसिंग होगी आपके प्रोडक्ट की बेसिकली उसको जो है मार्जिनाइज करना है, उसको उतना ज़्यादा हाई नहीं रखना है, उसको मार्केट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। फिर वी हैव अनदर थिंग पार्ट, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस, दैट इज जो आप वेबसाइट, जो आपका मोड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग है जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके जो कंप्लायंस हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डे टू डे चेंज होते रहते हैं। उसके साथ आपको अपने आप को यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद इट। फिर है ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, दैट इज अगेन जो हमने पिछले स्लाइड में बात की, जो एक ये रखा था हमने यहाँ पे, प्रोडक्ट कैटलॉग। यस, दिस इज अगेन द सेम थिंग। प्रोडक्ट कैटलॉग जो है वो एक फिर से वही उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी एंगेजिंग, इट शुड बी attractive, so that the customer is more and more interested in engaging with your content, your online content. Then competitive pricing strategy, that is again आपके जो competitors होंगे उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी और उसके कंपैरिजन में आपकी क्या प्राइसिंग होगी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनको देख के आपको अपना प्राइस रखना पड़ेगा so that you have more audience, you have more customers. Then multi-channel selling, another very important thing. That means जो आपके पास जितने भी platforms available हैं, try to maximize the use of those platforms, which means you can go on Amazon, you can go on IndiaMart, you can go on all the other websites, you can use social media, you can use आजकल नया आया है वो WhatsApp पे there is WhatsApp broadcast. That means you have to create a channel on WhatsApp now. और जिनका भी कॉन्टैक्ट आपका, जिनके फ़ोन में भी आपका कॉन्टैक्ट सेव होगा,
they can see that channel, and apart from those people जो आपकी चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो उस चैनल पे सब एडवर्टीजमेंट सब डिटेल देख सकते हैं। ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जो व्हाट्सएप ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये भी हम अपने प्लेटफॉर्म ऑफ सेलिंग जिसको हम कहेंगे उसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज मल्टी चैनल सेलिंग। एंड आफ्टर दैट कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। व्हाट इज कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन? इट मीन्स आपके जो कस्टमर्स हैं वो ही आपका बिजनेस सारा चलाते हैं, और अगर आपने उनके साथ एंगेजमेंट रखा, उनको कंटेंट प्रोवाइड किया, उनके साथ आपको मतलब एक जो है कम्युनिकेशन गैप बिल्ड नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से उन सबको आप रिटेन कर पाएंगे। दैट मीन्स एक पर्सनलाइज सपोर्ट होगा उनके पास, और कम्युनिकेशन लॉयल्टी प्रोग्राम्स अगर आप रख सकते हैं, इफ़ यू कैन प्रोवाइड देम कूपन्स, इफ़ यू कैन प्रोवाइड देम ऐसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। आजकल हम ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने देखा हो, काफ़ी सारी ऐसी रील्स देखी जाती हैं जिसमें एक फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ मोबाइल फ़ोन अगेन, उसके साथ आपको एक चार्जर फ्री दिया जाता है जिसमें इंक्लूड नहीं होता है, एक एयरफोन फ्री दिया जाता है, मोबाइल का कवर फ्री दिया जाता है। ये सब क्यों? सो दैट बिजनेस वही कस्टमर अपने घर पे सबको बोलेगा कि हाँ मैं यहाँ से ये चीज़ ली एंड आई वॉज दीज फ्री गिफ्ट्स। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कस्टमर एंगेजमेंट, एंड इसी से बेसिकली वो रिटेन होता है। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एंड we'll discuss a few details about these two platforms. I researched about all the other platforms as well that are available in India, but ये जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं Amazon एंड इंडिया मार्ट, मैंने ये देखा कि रिटेल में तो Amazon प्रेफर्ड है ही सबसे ज़्यादा, होलसेल में इंडिया मार्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, बिकॉज इंडिया मार्ट पे लो प्राइस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, दे टेक some more time to get delivered, but the price that you get on India Mart वो बहुत अच्छा होता है, and a lot of people engage with India Mart to sell their products. Now talking about Amazon, Amazon जैसा कि हम जानते हैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं भी इनफैक्ट उसी में काम करता हूँ। वो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में आजकल जो है फोकस कर रही है। सबसे बड़ा, जब Amazon के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो हमारे दिमाग में आता है ई-कॉमर्स ही है, बिकॉज Amazon बेसिकली was introduced as an e-commerce website back in July 1994, 5th July, by Jeff Bezos, and उस time he used to sell books on it. उसके बाद he developed websites, उसने cloud computing इसमें include किया, उसने digital streaming इसमें include किया, Amazon Prime जिसको हम आज कहते हैं। तो ये सब जो है Amazon के बारे में है। उसके बाद it was spread all across the world। आज अगर हम देखें, आज की बात करें तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हर दिन Amazon से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में एक अलग मार्केट प्लेस है जिसको Amazon.in कहते हैं। वैसे ही Amazon UK की अगर बात करें तो Amazon.co.uk, if we talk about Amazon North America, Amazon US, that is Amazon.com। तो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं बेसिकली, जो कि हमें हेल्प करती हैं टू engage with more and more people all across the globe। That was a few points on what Amazon is। अब मैंने इसमें ऊपर लिखा है Amazon for retail। That means Amazon पे आप रिटेल ही सेल करिए। It is advisable to sell retail on Amazon, क्योंकि Amazon पे उतना होलसेल का स्कोप है नहीं। हाँ, there are a few exceptions, but mostly it is advised to go for retail on Amazon, क्योंकि होलसेल के लिए we have a different company जो इसके बाद आएगी, जो होगी इंडिया मार्ट। We discuss about that in the next few slides। अभी we have how to set up your business on Amazon। तो ये सब डिटेल्स आपको sellercentral.amazon.in पर मिल जाएगी, जो ऊपर वेबसाइट दी गई है। You just need to पहले log in with your regular Amazon account, then you need to enter your GST number, upload your documents जो कि 48 hours में वेरीफाई होंगे। उसके बाद your details, the details of your store, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल, वो सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। Then we have the address from which the items will be picked up, and shipping preference। जो हम पहले लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे थे, शिपिंग प्रेफरेंस मीन्स आप खुद से अपना प्रोडक्ट शिप करोगे
या फिर you want Amazon to do it. Of course Amazon will charge you a bit for it, but if you do it yourself, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में हो जाएगा, तब भी आपको चार्ज देना पड़ेगा और ऐसे भी आपको चार्ज देना पड़ेगा. Now it depends on you and what you prefer. आप खुद से करना चाहते हैं या आप Amazon से करवाना चाहते हैं. उसके बाद डिलीवरी फी जो है, अगर वो आप खुद से पे करेंगे या फिर आप कस्टमर से पे करवाएंगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू. फिर आप बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे जिसमें आपका हर हफ्ते बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि द प्रोडक्ट्स से यू विल डू अ सेल ऑफ 10,000 रुपीज इन 1 वीक, तो उसमें से जितना अमेजोन को अपना कट लेना होगा वो अमेजोन ले लेगा और जो पैसा बचेगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट इन 1 वीक. तो उसमें एक हफ्ता लगता है पैसा आने में. एंड देन उसके बाद यू विल हैव टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल. देन वी हैव यू नो वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीस स्टेप्स, बस एक हमारा स्टोर लॉन्च करने में बस एक लास्ट वाला स्टेप है. दैट मीन्स यू हैव टू प्रेस द स्टार्ट सेलिंग बटन एंड देन योर प्रोडक्ट विल बी लाइव ऑन Amazon. It will be visible to all the customers throughout the world. This is a QR code जिससे आप स्कैन करके Amazon की वेबसाइट पे जा सकते हैं to get a few more details on how to set up your business. If you want, you can take a picture. I'll keep it like this. Then we have IndiaMart. IndiaMart now it was launched in India in 1996 और अगेन यहाँ पे ये इंडिया की जो होलसेल मार्केट प्लेस है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन होलसेल मार्केट प्लेस है. इट हैज़ मोर देन 60% शेयर इन B2B क्लासिफाइड स्पेस. दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस विच इज़ बेसिकली होलसेल. तो ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की जो SMEs जो होते हैं उनको बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पे कि वो अपना होलसेल प्रोडक्ट सेल कर सकें. और ये 1999 में जो है इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था एंड इट्स मिशन वाज टू मेक डूइंग बिजनेस इजी, बिकॉज उस टाइम इंडिया में देयर वर वेरी फ्यू वेबसाइट्स दैट provided an online market. Then again we have how to set up this business on IndiaMart. यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं. इस पे बिल्कुल ईजी है अपना बिजनेस सेटअप करना. इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज द वन वी हैड ऑन Amazon. इसकी भी वेबसाइट दी हुई है seller.indiamart.com. and then you just need to create an account, add a few details and add the products and the details of the products. उसके बाद for any further details you can scan the QR code. उस QR कोड पे जो है डिटेल्स दी गई हैं ऑफ सम बिजनेसेस दैट वर सेट अप ऑन IndiaMart एंड दैट दोज बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश कर गए थे अपने टाइम पे. इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू विद Amazon's QR कोड वंस अगेन. काफ़ी सारे गुड फोटोज चाहते हैं तो द डिलीवरी टाइम होनली डिपेंड्स ऑन यू. I think it seems okay for this place, but if we want to sell it outside the state. हाँ, आउटसाइड द स्टेट के लिए यू कैन चूज Amazon एज अ डिलीवरी पार्टनर बिकॉज दे शिप अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट Amazon एंड IndiaMart. जो है होलसेल और रिटेल हमने कवर कर लिया. दिस वाज बेसिकली फॉर लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल businesses. You can try small scale business on this as well, but a better option for small scale businesses will be social media. Because on social media you can engage with, you can share your products online. Again talking about social media marketing जो हमने पहले भी mention करा. Social media marketing is a very powerful marketing tool. और Instagram और Facebook पे तो each and every one of us must be on one of these social media websites. तो ये सब चीज़ें यूज़ करके we can use Instagram, Facebook, WhatsApp और any other platform. Social media हर जगह है. And to reach maximum customers, maximum potential customers, we can use such social media websites. And to use such social media websites to sell your products online, you just need to create a page on these websites. जैसे कि Instagram पे पेज बना लिया या Facebook पे पेज बना लिया. The process is very simple. आपको उनके मतलब Instagram के लिए Instagram.com, Facebook के लिए Facebook.com. You just have to go there and click on sign up. उस पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है. You have to add a few pictures and then you need to basically share your page with the people you know,
जो उनको और आगे शेयर, जो उस चीज़ को और आगे शेयर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रीच मोर एंड मोर ऑडियंस. So that is how you can use Instagram and Facebook. Now, in the next few slides, we will discuss about auto intelligence. What is auto intelligence and how it can help us in our field, how it can help us in e-commerce and how it can help us in boosting sales. Auto intelligence की अगर बात करें, auto intelligence और artificial intelligence, it refers to the simulation of human intelligence in machines that is programmed in such a way कि वो चीज़ एक इंसान की तरह सोचे, एक इंसान की तरह आपको response दे. The goal of auto intelligence is to develop systems that can perform tasks that typically require human intelligence. मतलब अगर मैं यहाँ ये सब बोल रहा हूँ या मैं यहाँ ये सब लिख रहा हूँ, तो AI का गोल यही है कि वो ये सब खुद से लिख सके. You should not be able to make a difference between what I can write on my laptop and what AI can write on the internet. AI का basically वही गोल होता है. आजकल हर जगह AI का यूज़ हो रहा है. हम जहाँ देखें in the field of education, in the field of what we say advertisement, in the field of marketing, in the field of e-commerce, आजकल हर जगह AI का यूज़ हो रहा है because it provides you apt results, it provides you positive results और इतने अच्छे results देता है कि you cannot expect such perfect results from a human. तो इसलिए AI जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इससे जो है human jobs काफ़ी सारे replace हो रहे हैं. But there are how we can use this AI in boosting the sales of our business. So I have listed 5 free softwares, free AI tools here. और मैं आपको उन सब का डिटेल बताऊंगा. I will tell you each and everything about those tools. What it can do for you. ये कैसे help करेंगे आपकी? It can be used in numerous ways to help you in this field of e-commerce. सबसे पहले आप एक AI में जैसे चैट जीपीटी को ले लीजिए. इफ़ यू यूज़ चैट जीपीटी, आपको वहाँ पे जो एंटर मैसेज करनी होती है, जो आपको यहाँ से मैसेज डालनी है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. उस प्रॉम्प्ट में आप कितनी डिटेल्स मेंशन करते हैं, उस प्रॉम्प्ट को आप कितना अच्छे से एंटर करते हैं, वो सब आप पर डिपेंड करता है. अगर आई विल हैव अ डेमो हियर अबाउट चैट जीपीटी और वो आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा इन गिविंग न्यूमरस नेम्स. अब जो प्रॉम्प्ट होगा उसमें आप क्या डालेंगे? उसमें आप चैट जीपीटी को बोलेंगे दैट आई एम ट्राइंग टू सेट अप माय बिजनेस इन कश्मीर एंड आई हैव अ बिजनेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड मतलब ऐसा लिखिए कि गिव मी अ क्रिएटिव नेम फॉर माय बिजनेस, गिव मी 10 क्रिएटिव नेम्स फॉर माय बिजनेस. तो वो आपको 10 के 10 क्रिएटिव नेम्स देगा. वो आप उसको 20 देने के लिए बोलोगे, वो आपको 20 नाम देगा और उन 20 नाम में से आप एक नाम सिलेक्ट करो जो कि आप अपने बिजनेस में यूज कर सके. यू कैन मॉडिफाई द नेम, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम चैट जीपीटी. इट्स नॉट यू हैव टू यूज दैट नेम एंड दैट नेम ओनली. उसके बाद गूगल ब्रैड, ये चैट जीपीटी जरा ही है, बट गूगल ब्रैड और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन गूगल ब्रैड एंड गूगल बार्ड एंड चैट जीपीटी इज दैट चैट जीपीटी की जो नॉलेज है इट इज लिमिटेड अप टू 2021. 2021 के बाद से चैट जीपीटी ने जो है नॉलेज हासिल नहीं की है. द वर्जन दैट इज फ्री. इसके पेड वर्जन्स भी हैं जिनमें 2021 से आगे की नॉलेज है, बट गूगल बार्ड जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और उसमें अभी तक जो भी इंटरनेट पे आया है वो सब कुछ अवेलेबल है. गूगल बार्ड के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे. देन वी हैव logo.com. आपने अब चैट जीपीटी से अपना एक नाम ले लिया, अब आपको उसका लोगो बनाना है. तो ये जो वेबसाइट है logo.com और Adobe लोगो मेकर, ये दोनों वेबसाइट्स फ्री टू यूज हैं. ये दोनों वेबसाइट्स का AI आप यूज करके अपने लिए लोगोस बना सकते हैं. You just need to enter, you just need to type your name and a few details. We'll take a look at both the websites and have a demo here. उसके बाद there is Canva. You might have heard about Canva. Canva basically एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है. Canva पे हम अपने पोस्टर्स बना सकते हैं. Canva पे हम advertisements डिजाइन कर सकते हैं using all the content that is available there. Most of the content on Canva is free to use. Yes, there are a few things जो कि use करने में पैसा लगता है. You have to pay a small amount for that. But
the free tools जो वहाँ पे हैं that are enough to create those advertisements that will be attractive, that will be interactive for your customer base. Now ChatGPT again, it is a free to use auto intelligence system created by OpenAI. और इस OpenAI की हेल्प से ये आपको flawless results provide करता है। यहाँ पे ChatGPT तो काफ़ी लोगों ने यूज़ कर ही रखा होगा। यहाँ पे उसका QR कोड, अगेन यू कैन स्कैन द QR कोड, यू कैन गो टू द वेबसाइट भी की हुई है। नाउ उसके बाद we have how it can help us in our field. It can help us to generate names, it can help us to generate business ideas. If you ask it कि I want to sell this product, या will I be able to sell this product, what strategies should I what strategy should I apply, what strategy should I use to sell this product in such a place जहाँ पे ये सब challenges मुझे face करनी है, तो वो आपको उस सब की जो है आपको एक strategy देगा that you can implement on your business and you can use the ideas that it provides you. यहाँ भी मैंने लिखा है it is updated till 2021 only. तो this is an obstacle basically जो इसकी knowledge 2021 तक है. To avoid that we have this, we have Google Bard. इसमें भी same चीज़ कर सकते हैं आप, but if you want something जो कि 2021 के बाद आया है, अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करना है जिसमें वो प्रोडक्ट सेल करने हैं जो 2021 के बाद आए हैं, you will use this, you will use Google Bard. ये अभी Google के एक्सपेरिमेंट में है, तो Google Bard जो है, it is again like ChatGPT. You can ask it to create 10 names for my vegetable. ऐसे आप इसमें ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं. तो दिस प्रॉम्प्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सम नेम्स. इसके बाद हम चैट जीपीटी के साथ सेम चीज ट्राई करेंगे, विल कंपेयर द रिजल्ट्स. देखिए जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, कश्मीर एमरल्ड हार्वेस्ट, या फिर कश्मीर जो फोर्थ पे है कश्मीरी क्रिस्प नेचर्स प्राइड. ये सब आप ऐसे बैठे बैठे इतने कम टाइम में तो नहीं निकाल सकते हैं. ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको ये नाम निकालने में हेल्प करती है. दैट्स इट. इफ वी कैन कॉपी दिस एंड ट्राई इट ऑन चैट जीपीटी एज वेल. अब देखिए काफी डिफरेंस आ रहा है इन दो नामों में. और So do we need to install the ChatGPT app first? no, you don't need to install it. See, I gave you the link, right? Here is the link. You just need to write this link chat.openai.com on your mobile phone or on your laptop. उस पे जाके आपके पास ये जो राइट साइड पे है ऐसा एक पेज खुलेगा, और इस पेज के थ्रू आप नीचे जो नीचे के बार है, you just need to type in anything that you want. इसको हम बोलेंगे give me 10 more names. तो ये आपको 10 और नाम दे देगा. ऐसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ नेम. अब फॉर एग्जांपल हमें गूगल ने एक नाम दिया सबसे पहला कश्मीर एमरल्ड हार्वेस्ट. इसको हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट रहेगा logo.com. इसमें जाके सॉरी सो इसमें logo.com में जाके हम यही चीज़ डालेंगे. what is logo.com? It creates online professional logos and it doesn't charge you anything. You just need to enter the name of your business and a few details, और वो सब करके आप अपना एक लोगो बना सकते हैं within no time. अब इसमें advantages क्या हैं? It has a user friendly interface, which means you don't have to do a lot of hassle to make a logo. It has library of thousands of icons. आपको जो आइकन पसंद आया वो यूज़ कर सकते हैं. इसमें fonts हैं, colors हैं, आप उस सब में से चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद the availability to customize your logo to your specific needs. आप इसमें customization भी कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैंने इसका QR कोड दिया हुआ है,
we'll have a trial here and we'll put the name जो हमें Google Card में दिया था. Yeah, it just asks you to enter your business name. यहाँ पे we'll enter the business name that was Kashmir's Emerald House, and then you just need to tab make a logo. इसके बाद enter your slogan. Okay, another thing. इधर हम करेंगे बार्ड का यूज फिर से. Give me a slogan for this business. देखिए अब इसने हमें जो है ये भी दे दिया एक nurtured by nature hand picked for you. This seems like a good slogan. इसको हम कॉपी करेंगे and we just need to paste it here on the next slide that came in. इसको आप skip भी कर सकते हैं if you want, but it is good to put this line so that it can be added to your logo. अगर आप मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू अपने इस जो है अपने ये बिजनेस की, तो ये जो बाय लाइन है nurtured by nature hand picked for you, if it seems appalling to some customers, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि ये लाइन जहाँ पे पढ़ी तो उस चीज़ के साथ इंटरैक्ट करें. Now clicking on next, we have to select an industry, that is agriculture. उसके बाद you can select themes. I think green would be very good for this. You can select green and blue for example. Orange को हटा देते हैं. Then you can select fonts. जैसा font आपको चाहिए. इसमें क्लासी ले लेते हैं, मॉडर्न ले लेते हैं. फिर select a few keywords. कश्मीर, ये सब हो गया. अब ये हमारे लिए एक लोगो बना रहा है. अब देखिए कितने सारे लोगो हमारे पास आ गए. Within no time we have a logo in front of us. We can choose any logo. We can जो है we can edit those logos. यहाँ पे हम इसके keywords change कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसके icons change कर सकते हैं. We can even switch off the icons अगर आपको पसंद नहीं आते. उसके बाद यहाँ पे next में ये वाला जो बटन है, यहाँ से हम इसके color change कर सकते हैं, इसका font change कर सकते हैं. और इस बटन पे टैप करके we can regenerate those things. Now, if we select a logo, for example, we select this one. ये हमारा लोगो रहेगा. इसका जो टेक्स्ट है, you can edit that. ऐसे रखना में यही है, just for the sake of showing you, हम इसको ऐसे edit कर सकते हैं. उसके बाद, if you want to add something, if you want to remove something, you can go to icons. You can search for, vegetables. ये सर्च करेंगे, देखिए वेजिटेबल्स आ गए. You just need to tap on it. ये खुद से एंटर हो जाएगा इसमें. If you want to resize it, you can resize it as well. Resize वाला बटन यूज करके. If you want it on the right side, if you want it on the bottom, if you want it on the left or on the top. उसके बाद you also have different icons. You can tap on get more icons, तो ये आपको और बहुत सारे icons दे देगा. Now, if we select this as our logo, we will tap next. और ये आपको different fonts दे देगा. इसी जो हमारी ऊपर हमारा बिजनेस का नेम है बेसिकली उसके लिए. तो इससे आप काफ़ी सारा ऐसे जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. This is all for free. You don't need to pay anything. Finish and save. You just need to log in with your email. Download your free logo. You just need to log in. एक बार log in कर लिया तो the logo it will be downloaded. It will be saved to your mobile phone. You can do it on your phone as well. That's the good thing. If you want to scan or if anyone wants to take a picture of this. Okay, so then we have another logo maker जो कि same चीज़ करता है, but the difference with Adobe Logo Maker is कि इस पे थोड़े ज़्यादा options available हैं. Adobe, as you guys must know,
Adobe is a very old company और ये अभी ऑटो इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा चुकी है. आगे जाके Adobe ये काफ़ी सारे different auto intelligence tool आने वाले हैं 2024 में. That will that will be ChatGPT, Adobe Logo Maker and everything at one single place. ये ऐसा कुछ जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं. It is still in the making. इस पे भी सेम चीज़ करनी होगी लोगो मेकर पे जो है. If we can try. ये मैंने पहले से ट्राई कर रखा है. My vegetable business is called and my slogan is this. अब आपको कैसा फॉन्ट चाहिए? Again, you have to select. For example, we select elegant. Then we go ahead. अब आपको आइकॉन्स क्या डालने हैं? अब इसमें हमने पहले ही वेजिटेबल्स का नाम ले लिया है तो let's type in vegetables. For example, we select this icon and then we tap next. अब ये हमारे logos डिजाइन करेगा. तो ये देखिए ऐसे टाइप के logos we can edit them. We just need to tap this download और ये डाउनलोड हो गया. अब ये डाउनलोड भी जो हुआ ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाउनलोड हुआ. If you can see यहाँ पे पहला तो नॉर्मल लोगो है, ये जो हमारा लोगो रहेगा. उसके बाद वी हैव अ ब्लैक लोगो जो कि ट्रांसपेरेंट लोगो रहेगा. ये सब मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं, ये वो पैम्फलेट्स में यूज़ होते हैं. एंड देन वी हैव अ वाइट लोगो जो कि यूज़ होगा बेसिकली अगर हमारा थोड़ा कलरफुल लोगो होता तो उसमें हमें डिफरेंस पता चलती है. इसका बैकग्राउंड भी सेंस बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसमें उतनी डिफरेंस पता नहीं चलेगी. देन the last thing that we have here, that is Canva. Canva का again I have given the QR code, I have the website here. Canva is an online tool जो मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ. Canva पे आप जो है फोटोज़ और लोगोज और हर एक चीज़ टेक्स्ट सब कुछ आप खुद से अपलोड कर सकते हैं. And you can basically make interactive advertisements. You can make advertisements for your business. इसमें आप अपने बिजनेस का लोगो इंक्लूड कर सकते हैं. अभी जो हम डाउनलोड किए I'll show you an example with that. यहाँ पे अगर हम लिखें Canva तो ये Canva का बेसिकली ये रहता है. I'll just log into it and I'll show you. This is basically Canva. यहाँ पे आपसे आइडियाज जो है निकाल सकते हैं और ये सब डिज़ाइन मैंने खुद करा है Canva पे. ये सब डिज़ाइन हो सकता है Canva. And Canva पे basically you can upload this icon. You can use it in your pamphlets. You can use it in your advertisements. ये हर जगह यूज़ हो सकता है. That is I think about Canva. बाकी if you need help regarding Canva, if you need help regarding any of the above websites, if you need those QR codes, I can send them to you as well. Then the last thing that we have, some common problems that we face while we are setting up our business. तो कई बार ऐसा होता है, पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ट अबैंडनमेंट. मतलब कि आप अपने कार्ट में 10 चीज़ें ऐड करके रखते हैं बट यू नेवर बाय देम. वो उसमें पड़ी रहती हैं. ये एक प्रॉब्लम है जो फेस कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, इसका एक सोल्यूशन ऐसा दिया गया है कि अप टू अ लिमिटेड टाइम एक प्रोडक्ट उस कार्ट में रह सकता है. मतलब व्हाइल यू आर एडिंग अ प्रोडक्ट टू अ कार्ट, एक आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आता है दैट सेज द प्रोडक्ट will be removed or the item will be removed from the cart if it is kept there for more than say 15 days or 20 days. That depends upon the website. उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगेन जो हमने पेमेंट गेटवेज की बात की थी स्टार्ट में, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी कंसर्न्स, व्हिच मींस आप प्रोन हैं इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन थिंग्स, if you're doing your business online, you will always be prone to hacking, you will always be prone to cyber security threats. और वो सब अवॉइड करने के लिए you need to have again that secure payment gateway, you need to have your products listed on a secure website, or you need to have a secure internet service provider. फिर customer trust and credibility, that is one more important thing, that is one very important thing.
इसका जो बेसिकली कस्टमर ट्रस्ट जो है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, इसको गुडविल कहते हैं. इफ़ योर गुडविल इज देयर इन द मार्केट, तो जो कस्टमर है वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि वो आपसे ही अपना प्रोडक्ट ले. बट द पॉइंट इज दैट टू क्रिएट दिस गुडविल इन द मार्केट इज अ ह्यूज टास्क. एंड हाउ टू डू दैट? आपको यू नीड टू हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स. वो सब होना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो थ्राइव हो सके. एंड देन लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग इश्यूज. अगर आपका प्रोडक्ट एक दिन लेट डिलीवर हो रहा है, 2 दिन लेट डिलीवर हो रहा है, देन अगेन वही गुडविल कम हो जाएगी आपकी मार्केट में. एंड दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे जो सेलर्स होते हैं जो अमेज़ॉन पे होते हैं, इफ़ दे चूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट देमसेल्फ, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो फेल हो जाते हैं ये प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर करने में, जिससे कि जो कस्टमर होता है, द कस्टमर ही और शी कॉल्स अस, वो हमें बोलता है कि आप लोग प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए, और मैं ये प्रोडक्ट बाई करना चाहता था, ये प्रोडक्ट मुझे आज शाम को यूज़ करना था, बट कल इसका मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो यू नीड टू कैंसिल इट. दैट इज ऑल्सो अनदर कॉमन प्रॉब्लम. अब कभी कभी प्रॉब्लम ये डिलीवर लेट क्यों होता है? देर आर शिपिंग इशूज़. कहीं पे मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो रास्ते में कहीं पे फंस गया, या रास्ते में ख़राब हो गया, जो डिलीवर कर रहा था उसके साथ कोई एक्सीडेंट या कुछ हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट लेट डिलीवर होगा, और उसकी वजह से आपका बिजनेस आम होगा. यहाँ पे व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज अ ट्रस्टवर्दी शिपिंग कंपनी और लॉजिस्टिक्स कंपनी. और वो ढूंढने की मतलब ऐसा नहीं है दैट यू कैन डू 100% इंश्योरेंस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे ही डिलीवर होगा. हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यू विल हैव टू ट्राई टू मिनिमलाइज दोज एक्सेप्शंस. देन रिटर्न्स एंड रिफंड्स. रिटर्न्स एंड रिफंड्स अगेन मतलब ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी एग्जांपल हमारे सामने आई है, सेलर्स ने कंप्लेंट की है दैट द कस्टमर हैज यूज्ड द प्रोडक्ट वंस एंड देन रिटर्न इट, और हमको उसको पूरा पैसा देना पड़ता है. दैट इज अनदर रिटर्न एंड रिफंड्स इज अनदर प्रॉब्लम. अब इसके लिए रिटर्न्स एंड रिफंड्स पॉलिसी होती है. उसमें ऐसा होता है कि जब एक प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं उसकी पूरी एग्जामिनेशन होती है, एंड इफ द प्रोडक्ट फेल्स दैट एग्जामिनेशन इन अमेज़न आई एम टॉकिंग, अगर प्रोडक्ट ने वो एग्जामिनेशन फेल कर ली, तो ये चीज़ जो है ये ऑनलाइन ये उसको या तो पार्शियल रिफंड मिलेगा, नहीं तो प्रोडक्ट वापस शिप हो जाएगा. फिर कंपटीशन, देयर इज वेरी इंटेंस कंपटीशन, वी ऑलरेडी नो. और कंपटीशन को ऐसे वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट surpass the competition just like that. We'll have to do all the इसमें मेहनत लगेगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, जो मार्केटिंग टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, जो ऑनलाइन टूल हमने डिस्कस किए हैं, वो सब यूज़ करने का मतलब एक तरीका आप अगर सीख लें, अगर वो मार्केटिंग टूल्स यूज़ करें आप सही से, तो उस कंपटीशन को कुछ हद तक आप पीछे छोड़ सकते हैं. फिर टेक्नोलॉजी चैलेंजेस. अब जैसे अभी हमने एआई की इतनी सारी चीज़ें देखी, आज से 2 साल पहले मान लीजिए दिस वाज नोवेयर. इस चीज़ से इतना एडवांसमेंट हो गया है, पहले वही लोगो डिज़ाइन करने में जो यहाँ पे 10 सेकंड में डिज़ाइन हुआ, वही डिज़ाइन करने में मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कम से कम लगता, बट वही चीज़ अब हमारे सामने 10 सेकंड में हो रही है. और ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जिसकी वजह से आजकल काफ़ी इवॉल्व हो गया है सब कुछ. एंड आउटडेटेड सिस्टम्स, जैसा यहाँ पे लिखा है, आउटडेटेड सिस्टम्स जो हैं वो सब हमें यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा. हमें उससे मतलब आउटडेटेड सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वल्नरेबल होंगे टू दो सिक्योरिटी थ्रेट्स वंस अगेन. फिर डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिवनेस. दिस इज अगेन अबाउट वो पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट हमने अभी बात की थी, ये उसी से रिलेटेड है. मतलब आपका डाइवर्टिंग ट्रैफिक लिखा हुआ है. This means to get more and more internet users to your website, to your web page, to your product page on social media or on Amazon or on IndiaMart, जिस भी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपका ट्रैफिक फ्लो हाई रहे उस वेबसाइट पर या उस पेज पर. रेगुलेटरी कंप्लाइंस, दैट मीन्स द टैक्स लॉज एंड ऑल, उन सब स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड अगर बात करें, उन सब चीज़ों के साथ कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद रूल्स एंड लॉज, यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस ऐसे just like that. You need to comply with all the rules and regulations. That is the last problem, because they pose some problems sometimes.
कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से यू कैन नॉट शिप योर प्रोडक्ट टू अ सर्टेन प्लेस जहाँ पे आप शिप करके काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है. तो those were all the problems that we can face while we are setting up an online business. And if anyone has any questions. मेरा ये क्वेश्चन है सर, जिस तरह आपने बताया कि अमेज़न और इंडियन मार्केट, इसके अलावा कोई और भी ये वेबसाइट्स है जहाँ पे हम सेल आउट कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे कि अमेज़न है, अमेज़न पे हमें सर कोई भी चीज़ बनाने को बेचने के लिए या उस पर करने के लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. तो जैसे कि हम अपनी मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, हमें कोई वहाँ से कोई ऐसा पैकेज चूज़ करना पड़ेगा रीसेलर के वहाँ अपनी चीज़ वहाँ बेचने के लिए, या जस्ट हमें कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अपलोड कर देंगे? जी, सबसे पहला जो आपका सवाल था उसके बारे में अगर हम बात करें कि और कोई वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं, तो हाँ, वेबसाइट्स तो काफ़ी सारी अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट है आपके पास, स्नैपडील है आपके पास, बट एज यू नो स्नैपडील पहले चलता था. अब यू डू नॉट सी एनी एडवर्टीजमेंट्स ऑफ स्नैपडील, यू डू नॉट सी एनीथिंग. क्यों? क्योंकि वो कंपनी फेल हो गई. और फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर कंपेयर टू अमेजोन का मार्केट शेयर इंडिया में, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग इंटरनेशनली, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया. अगर आप इंडिया की बात करें तो अमेजोन का मार्केट शेयर इज कंपेरेटिवली वेरी हाई. और फ्लिपकार्ट यूज़ करके आप इंडिया मार्केट को तो कर लेंगे केटर, जो आपके इंडिया में कस्टमर्स होंगे, टारगेट ऑडियंस होगी इंडिया में, आप उनको तो देख लेंगे, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे खरीद सकते हैं. बट जब आप Amazon.in पे कोई चीज़, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग अबाउट द कंपनी दैट आई वर्क फ्रॉम, बट यस, अगर आप Amazon.in पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो Amazon.in के थ्रू Amazon.co.uk, Amazon.com और जितनी भी सारी हमारी मार्केट प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव आई थिंक 100 प्लस मार्केट प्लेसेस अराउंड अक्रॉस द ग्लोब, वो सब लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेस कर सकते हैं. बट दैट कैन नॉट बी डन ऑन फ्लिपकार्ट, दैट कैन नॉट बी डन ऑन स्नैपडील और एनी अदर ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म. मैंने ये उस हिसाब से बनाया था, Amazon इसलिए रखा था बिकॉज इट इज़ अक्रॉस द ग्लोब. दैट वाज द होल पॉइंट. एंड द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड was about this, how to set it up, right? सेटअप करने की सारी डिटेल्स जो हैं एक बार खोल के देख लेते हैं. sellercentral.amazon.com, ये सॉरी Amazon.in, इस पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर सकते हैं. इस पे अगर हम टैप करें हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन Amazon, ये फिर वही सब है. इस पे आपको अकाउंट डालना है. अगर आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस है आपको अपना GST डालना है. अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो आई थिंक पैन के थ्रू भी इस पर रजिस्टर हो सकता है. बट यू नीड अ फ्यू डिटेल्स टू सेट इट अप ऑन Amazon. यही सब चीज़ें हैं. स्टोर का नाम लिखना है, पिकअप एड्रेस लिखना है. बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उसी वर्टिकल में काम करता हूँ, सेलर वर्टिकल में. यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम. इसमें नीचे में जो है FAQs दिए हुए हैं, सब चीज़ों की यहाँ पे जो है डिटेल्स दी गई हैं कि आप कैसे कर सकते हैं. फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं. यू कैन सर्च फॉर दी Amazon कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर. इफ यू कैन सर्च फॉर अस Amazon इंडिया कस्टमर केयर, इस पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप कॉल मी पे अगर टैप करेंगे तो आपको बस अपना नंबर एंटर करना है. वील गिव यू कॉल बैक. हम आपसे खुद बात करेंगे. आपके जो भी इश्यूज, जो भी कंसर्न्स होंगे, वी कैन सॉल्व दैट. ये Amazon जो पेरिशेबल प्रोडक्ट वेजिटेबल्स हो गया, हम आपको बेसिकली हाँ, उसके बारे में एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा. Amazon फ्रेश, ये देखिए Amazon फ्रेश जो है इस पे यही सब सेल होता है. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट कैरेट्स, वी टॉक अबाउट कुकम्बर्स, ये सब वेजिटेबल्स, ये सब पेरिशेबल आइटम्स ही हैं. इस पे यही सब सेल होता है. ऐसा होता है कि इसमें सेम डे या नेक्स्ट डे या 2 डे डिलीवरी होती है. अगर आप नेक्स्ट डे डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो चूज़ करें तो पेरिशेबल आइटम ख़राब नहीं होगा. It is limited to if I am in Kashmir, I am selling in Kashmir only. हाँ, दैट इज इट. वो सब क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक ही दिन में यहाँ से चेन्नई या यहाँ से मुंबई अपना प्रोडक्ट सेल करें. ये
locally available है, but it is an online platform. So how can we rely on such system which is already running 2 years behind the current situation for the business establishment? As you talked about the chat GPT, which is already running 2 years behind the current system. How can we rely on the ideas that we get from that? That's why I introduced Google Bard. Yes, sir. ये जो है ये पूरा अपडेटेड है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पर अपडेटेड कंटेंट ही निकलता है। ये गूगल सर्च ही यूज करता है, बट इट प्रेजेंट्स टू यू इन सच अ फॉर्मेट जैसे आपको लगेगा एक ह्यूमन आपको आंसर कर रहा है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको लगेगा इस पे वैसे ही रिजल्ट्स हैं जो कि आपको एक इंसान बोलेगा। अभी आप कुछ सेल कर रहे हैं कश्मीरी पे, अमेज़न फ्रेश पे, लेटेस्ट से कश्मीर और जम्मू? जी, अमेज़न फ्रेश पे तो सेल होता है। मतलब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, बट यस देयर आर अमेज़न कर रहे हैं, वो तो ठीक है। दे आर प्रोक्योरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर? यस, मतलब ऐसा है कि कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे अभी ये इवॉल्व हो रहा है। इट्स नॉट फुली fully evolved here, it is still being introduced, so it will be, we are doing ड्राई फॉर See, वाटर और हमारे इसमें प्रिजर्वेशन का इशू। तो उसके लिए we are trying to introduce Amazon Fresh here as well. We are doing some experiments, we are doing some tests. We are preparing to launch it by the start of 2024. हो पाए तो 2024 जनवरी में वो लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद we will sell, Amazon Fresh will be selling across Kashmir. तो आपका जो सिस्टम है, मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर एरिया में एक डिपो है जी, तो उस डिपो में मटेरियल आता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन केस ऑफ फ्रेश, बिकॉज़ फ्रेश में यू कांट अफोर्ड टू कीप इन द डिपो, एंड फ्रॉम द डिपो यू सेल। तो उसका जो प्रोसेस है, इट हैज टू बी the process basically is कि आप फार्मर्स के पास जाके ही लेंगे, फ्रेश प्रोडक्ट लेंगे, और उसको सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर करेंगे, सो दैट वो खराब। दैट इज द होल आइडिया। ये जो है अभी दिल्ली में इम्प्लीमेंटेड है Amazon Fresh, मुंबई में इम्प्लीमेंटेड है, एंड इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन। what is the effect on the cost? Let us say any product of mine is of 10 rupees, for example. So what are the other logistic costs? Which Yes, there are logistics costs, there are delivery charges, but if you say, मतलब एक लिमिट रखी है हमने। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने 100 रुपये का वेजिटेबल या फ्रूट Amazon Fresh से लिया, तो यू हैव टू पे अबाउट 32 रुपीज़ और 16 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। अगर आपने यही चीज़, अगर आपने अपना टोटल जो आपका कॉस्ट आया खरीदने का एज अ कस्टमर, इफ यू बाय वेजिटेबल्स कॉस्टिंग ₹200 या 250, दैट इज अबाउ आवर स्केल, तो उस पे हम आपको फ्री डिलीवरी या 8 रुपीज़ डिलीवरी देते हैं। that is okay, वॉल्यूम जितना होगा उतना obviously कॉस्टिंग कम हो जाएगी, बट ऑन एन एवरेज what is the additional cost? Let us be very, a farmer sells it say 100 rupees. When he sells it through Amazon, is it 8%, 10% on an average? ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फार्मर। ये उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, वही सेल करते हैं, हम बस इसको फार्मर तो आपको भी Amazon के थ्रू भी बेचेगा तो उसी रेट में बेचेगा, मार्केट में देगा उसी रेट में बेचेगा, लेटेस्ट से। बट जब Amazon के थ्रू एक कन्वीनियंस है तो कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर इज द कन्वीनियंस, उसके डोर स्टेप पे आता है, बट फॉर दैट कन्वीनियंस हाउ मच ही हैज टू चार्ज, हाउ मच ही हैज टू पे एक्स्ट्रा, लेट अस ऑन एन एवरेज। आर यू टॉकिंग अबाउट द सेलर, उसको कितना पे करना पड़ेगा? बायर अच्छा, बायर बायर तो सेलर को तो ठीक है, आपके साथ एक रेट फिक्स हो जाएगा, मैं इस रेट पे बेचूंगा आपको। बायर को वो पैकिंग चार्जेस 6 रुपये लगेगा। ये सब जो चार्जेस हैं, हैंडलिंग, पैकिंग और ये जो भी चार्जेस मान लीजिए, वो सब Amazon को जाता है, और जो 100 रुपये कस्टमर पे कर रहा है वो सेलर को जाता है, फार्मर यहाँ पे। So that means there is an increase of 32% Yes. on the basic price. Yes. But we, But in volumes, obviously it will come down. हाँ, तब कम। When it is a volume, then it will come down. तो बेसिकली 32 रुपीज़ हमारे पास आएंगे, 100 रुपीज़ सेलर फार्मर के पास आएंगे। 100। अब इसमें अगर हमें ऐसा कोई सवाल पूछेगा कि कस्टमर ये क्यों चाहेगा कि वो Amazon से खरीदे, वो नीचे से क्यों नहीं खरीदेगा, इसमें क्वालिटी चेक्स होते हैं, इसमें सारी क्वालिटी देखी जाती है, इसमें पैकेज क्वालिटी कौन चेक करेगा? क्वालिटी हम चेक करते आप कैसे चेक करेंगे? मतलब मटेरियल आप लेंगे तब चेक करेंगे? हैं जी। जैसे ही मटेरियल उठता है, इट इज बेसिकली चेक फर्स्ट। What kind of quality you want? Quality as in physical appearance? Yes,
नॉट दैट वो जो आप लोग चेक कर सकते हैं वो तो ऑब्वियसली हम चेक नहीं कर सकते बिकॉज हम उतना उस फील्ड में नहीं है, हम मार्केटिंग की फील्ड में, तो हम Appearance. फिजिकल अपीयरेंस Yes. के हिसाब से आप लेंगे। फिर उसके बाद इफ इट इज नॉट यू नो, अगर उसकी क्वालिटी उस हिसाब से खराब है, टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक टर्म्स, अगर उस हिसाब से वो खराब है, देन ग्रेजुअली वी विल गेट द रिव्यूज जो वो यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो दिखने में सही है लेकिन अंदर से वो खराब है, तो आप उसका रिव्यू हमें देंगे। ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अमेजोन में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जितना मैंने देखा है इन द पास्ट 1 ईयर, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है उसका रिव्यू बहुत कम आता है, बट अगर कोई प्रोडक्ट आपको खराब लगता उसका है रिव्यू लगता है। उसका रिव्यू, बैड रिव्यू, इफ अ कस्टमर हैज टू गिव अ बैड रिव्यू दे विल गिव अ रिव्यू, इफ दे हैव टू गिव अ गुड रिव्यू सोचेंगे दें या नहीं, बिकॉज उनके हाथ में। अगर उनको कोई चीज़ खराब लगी, मैंने कोई चीज़ खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, इफ आई ऑर्डर अ पिज्ज़ा ऑनलाइन और मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मुझे वो ठंडा लगा, तो मैंने वो स्विगी से खरीदा, मैं उन पर कंप्लेंट करूंगा कि ये ठंडा है, इट्स नॉट यू नो, आई डोंट वांट टू ईट इट लाइक दिस, यू विल हैव टू सेंड अ रिफंड, यू विल हैव टू सेंड अ कूपन। बैड रिव्यू हमेशा जाएगा, गुड रिव्यूज नहीं जाएंगे। तो इफ वी गेट बैड रिव्यूज फॉर अ पर्टिकुलर सेलर, वी विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम देम। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ब्लिंकिट, देयर इज अनदर कॉल्ड डंजो, ये सब बॉम्बे बैंगलोर में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द पास्ट फ्यू इयर्स, कोविड के टाइम पे बेसिकली, व्हेन essentials were meant to be delivered to your doorstep. So those websites, a couple of them are working in Srinagar also. हाँ, not all of them. Not all of them. Yes, yes. Not all of them, a couple of them are working. एक वो ग्रोसरी करके जो था, Grocery. that was very उनके लिए good. वो vegetables भी देते जी। थे। कोविड आज के पता नहीं कोविड में तो देते थे। कोविड में तो उससे काफी ज़्यादा। So that was it from my side. Any other questions? Any other queries? For giving us this know-how about e-marketing. This is a token of appreciation for you.